again in DSS online classes. This is Chaman Singh and today we will study History chapter 9, Women, Caste and Reforms. Student, this is our part second video and in this video we will clear the next topic of this lesson, that is girls begin going to school. Student, in this chapter we are discussing about the condition of women around 200 years ago and after that, and also the conditions of women's education and many other things. Student, girls begin going to school. It was the time when education for girls was necessary to improve their conditions. So many social reformers thought that girls' education was very important because without girls' education, girls could not improve their own conditions. अर्थात लोगों का मानना था उस समय के जो समाज सुधारक थे कि लड़कियों की शिक्षा को दुरुस्त करना, शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां शिक्षित होंगी तभी वो समाज में जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट है पीपल्स का गर्ल्स या वुमेन्स के प्रति वो खत्म होगा. सो टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स Ishwar Chandra Vidyasagar, student Ishwar Chandra Vidyasagar, I taught you in previous video, who fought for women's rights and also fight for widow women's remarriage. So Ishwar Chandra Vidyasagar set up women's school in Calcutta, and after that many other social reformers set up schools in Bombay as well. अर्थात ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विद्यालय खोला कलकत्ता में, और इसके साथ साथ बम्बई में भी बहुत से ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे महिला एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोले. नाउ although many people were afraid of them, it means that to opening the school for women, it afraid many men in the society. अर्थात उस समय के जो पुरुष लोग थे, लड़कियों के लिए स्कूल खुलने की वजह से ये काफ़ी भयभीत हो गए, एंड बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट दे थॉट दैट इट केप अवे द गर्ल्स फ्रॉम द होम्स. पहला ये है कि इससे लड़कियां घर से दूर हो जाएंगी, एंड इट प्रिवेंट द गर्ल्स टू डू डोमेस्टिक ड्यूटीज. इससे लड़कियां अपने डोमेस्टिक जो घरेलू काम है, जैसे कि घर के जो वर्क होते हैं, साफ सफाई, चूल्हा चौका, बर्तन वगैरह, खाना बनाना, इससे वो दूर हो जाएंगी. एंड girls also away from the homes and went in the public place to reach the school. उनका ये भी डर था कि लड़कियां स्कूल जाने के लिए पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल करेंगी, एंड इट वुड क्रिएट अ करेक्टिंग इन्फ्लुएंस अमॉन्ग देम. और इससे लड़कियों के अंदर जो है एक प्रकार से गलत भावना आने लगेगी और उससे वो बिगड़ सकती है. ऐसी मानसिकता थी पुरुष समाज की. एंड मेनी पीपल थॉट दैट गर्ल्स शुड अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक प्लेसेस. कई लोगों का मानना था कि लड़कियों को ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए, उन्हें एक चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए. सो थ्रू आउट द 19th century many educated women went house to house and taught girls in their homes. तो 19वीं शताब्दी में लगभग बहुत सी ऐसी जो शिक्षित महिलाएं थी वो घरों में जा करके और महिलाओं को या लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी, जिनके घर वाले उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते थे लेकिन लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे. एंड स्टूडेंट, इन क्लास 7 you studied about the story of Raj Sundari Devi. How did he get education in such extreme conditions where it was believed that if a woman study she would be widow. ऐसा जहाँ विश्वास था, एक समाज में एक स्टीरियोटाइप था कि अगर कोई लड़की शिक्षा ग्रहण करेगी या कोई औरत शिक्षा ग्रहण करेगी तो वो विधवा हो जाएगी. सो राज सुंदरी देवी secretly learned to read and write after a very hard attempt. Mid-19th century, many reformers started setting schools for women's education to promote their condition. For example, 19th century Arya Samaj set up many schools in many parts of the country like Punjab. Jyoti
also encourage Muslim women. Student, after that, the first Urdu novel also began to be written to encourage women's education among Muslims. Student, the next topic is women write about women. अर्थात महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया. So we will discuss some of the famous educated and social reformers, women who wrote about the condition of women. These are Begum of Bhopal founded a primary school for Muslim girls at Aligarh. अर्थात ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे स्कूल खोले. जैसे कि भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल की स्थापना की मुस्लिम गर्ल्स के लिए. एंड ऑल्सो बेगम रुकैया हुसैन शेखावत, I taught you in class 7, who opened schools in Patna and Kolkata for Muslim girls and for other girls. She was a very fearless critic of conservative society or conservative male society. इतना ही नहीं, रुकैया शेखावत हुसैन जो थी वो बहुत ही एक बड़ी आलोचक थी उस पुरुष समाज की जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट में घिरा हुआ था और वुमेन को वो इन्फीरियर मानता था मुकाबले में पुरुष के. नाउ बाय 1880s women began to enter in the university, and after got education, many trained as doctors, many became teachers and others also. Now student, many started writing about women's conditions also and published many novels or many magazines in 19th century. अर्थात बहुत सी महिलाएं थी जिन्होंने कलम का सहारा लिया और महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखना शुरू किया, जिससे कि महिलाओं की स्थिति को सबके सामने लाया जा सके और उनको सुधारा जा सके. नाउ एग्जाम्पल, ताराबाई शिंदे was one of the social reformer who wrote a book named Stri Purush Tulna. It means that the comparison between men and women. उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से पुस्तक लिखी and criticize the male dominating society. और उन्होंने जो पुरुष समाज था उसकी विचारधाराओं के लिए उसकी आलोचना की अपनी पुस्तक में. Now next, you have heard Pandita Ramabai, who also said that in Hinduism was oppressive towards women. उनका मानना था कि जो हिंदू समाज है वो महिलाओं के प्रति ऑपरेसिव है, because she said that she had seen the women conditions among the higher class or upper class families where women are not treated equal as the male people. उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हिंदू समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, जहाँ पर महिलाओं को इन्फीरियर माना जाता है, उन्हें दबा के रखा जाता है पुरुषों द्वारा. एंड शी आल्सो फाउंडेड अ विडो होम फॉर दोज वुमेन हु वर नॉट ट्रीटेड वेल इन देयर फैमिली बाय मेल पीपल आफ्टर बिकमिंग अ विडो. अर्थात उन्होंने ऐसी विधवा महिलाओं के लिए जिनके परिवार के लोग उन्हें विधवा होने के बाद जो पुरुष हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके लिए उन्होंने विडो होम खोला पुणे में, where she provide shelter for women and where they could support themselves economically also. यानी ऐसी संस्थाओं में, विडो होम में जो विधवा महिलाएं थी वो जाकर रहती थी, वो न सिर्फ अपने स्थिति को सुधारती थी बल्कि आर्थिक रूप से भी वो मजबूत होती थी, जिससे कि अपने जीवन को वो आगे अच्छे से जी सके. Student, all this was done by the women alarmed the orthodox Hindu society. अर्थात जो पुरुष समाज था, जो पारंपरिक पुरुष समाज था, उन्होंने जब महिलाओं को इस तरह से क्रिटिकल वे में देखा पुरुष समाज के ऊपर और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, so many Hindu nationalists thought that women adopted Western ways which corrupt Hindu cultures and their life
और वैल्यूज। अर्थात बहुत सारे जो हिंदू राष्ट्रवादी थे उन्होंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को वेस्टर्नाइज कर रही है, अर्थात पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट कर रही है, और इससे जो हिंदुओं की कल्चर है, अर्थात हिंदुओं का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो उनकी परंपरा है, वो कहीं ना कहीं वो नीचे जा रही है, अर्थात वो उसका ह्रास हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। सो एंड मेनी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एज वेल एज हिंदू नेशनलिस्ट आल्सो were worried about the impact of these changes। इतना ही नहीं, बहुत से मुस्लिम जो पारंपरिक लोग थे, पुरुष थे, उनको भी डर था कि ये जो परिवर्तन हो रहा है महिलाओं की स्थिति में, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए भी घातक है। सो बाय द एंड ऑफ द 19th century many women actively working for the reforms of women and their education। अर्थात 19th सेंचुरी में बहुत सी महिलाएं थीं जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एंड दे रोट बुक्स, पब्लिश्ड मैगजीन्स, फाउंडेड मेनी स्कूल्स एंड आल्सो फॉर्म्स मेनी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। अर्थात इस प्रकार से बहुत सी महिलाओं ने किताबें लिखी, मैगजीन्स छापे, इतना ही नहीं बहुत से स्कूल खोले गए, ऐसे दबाव समूह, राजनीतिक समूह बनाए गए जिससे कि वो सरकार के ऊपर या जो उस समय की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके ऊपर प्रेशर बना सके, ताकि वो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लॉ बनाए जहाँ पर वुमेन सफरेज अर्थात राइट टू वोट, अर्थात महिलाओं को वोट का अधिकार मिले जिससे कि वो अपने आप को इक्वल मान सके। So in 20th century, many Indian nationalists like Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and others supported women for their equality and more freedom। अर्थात उन्होंने भी सपोर्ट किया महिलाओं को कि इनको इक्वलिटी दिया जाए और इनको और अधिक फ्रीडम दिया जाए। Now next, law against child marriage। I taught you in previous video that in 19th century or around 19th century चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी प्रेवलेंट। अर्थात जो बाल विवाह था बहुत प्रचलित था। इन वेरी अर्ली एज, इन चाइल्डहुड एट 8 years और 9 years चिल्ड्रन वर मैरिड। अर्थात बहुत कम अपने बच्चों को का विवाह कर दिया जाता था व्हेन द एज वेयर दे कुड प्ले द गेम्स, वेयर दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट द मैरिड लाइफ, इन दैट एज दे वर मैरिड। सो to prevent child marriage, many women organizations fought, raised their voices, and after that, in 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed। अर्थात उसके बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया था। बाल विवाह को एक अपराध माना गया, 1929 में इसको बैन कर दिया गया। Now next, and also the age for marriage for both male and female was male for male 18 years and for women in 16 years। उसके बाद एक नियम बनाया गया कि शादी के लिए पुरुषों की उम्र 18, महिलाओं की 16 होगी। आफ्टर दैट इट वाज चेंज इनटू 21 फॉर मेल एंड 18 फॉर फीमेल। बाद में इसको बढ़ा करके पुरुषों के लिए 21 साल कर दिया गया, महिलाओं के लिए 21 years कर दिया गया। So student, this is the law of against child marriage। Now next, caste and social reform। Student, you know caste was also a great factor in Indian society or Indian conservative society। Now student, many social reformers criticized the caste system among Hinduism। Example, Raja Ram Mohan Rai and many others like Pratapar Samaj adhere to the bhakti that believed in spiritual equality of all caste in Bombay। अर्थात प्रार्थना समाज हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए बंगाल के समाज सुधारक, जिन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का सहारा लिया और बताया कि जो कास्ट है वो कितना गलत है, कहीं भी कास्ट का कोई मतलब नहीं होता है। ऑल पीपल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड ऑल आर इक्वल। हर कोई
भक्ति के थ्रू वह कास्ट को निगलेक्ट करता है, कास्ट को रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट, Paramahansa Mandali was also founded in 1840 for the same cause to abolition of caste, अर्थात जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए परमहंस मंडली बनाई गई 1840 में, जिसका मेन मकसद था जाति को समाप्त करना। एंड इन सीक्रेट मीटिंग्स दे also violate caste taboos in food and touch। और ऐसा ही नहीं, जो परमहंस मंडली के जो लोग थे, चाहे उच्च समाज के हो या निम्न समाज के हो, वो ऐसे सीक्रेट मीटिंग्स करते थे जहाँ पर छोटी जात बड़ी जात के सभी लोग मिल करके एक दूसरे के साथ भोजन करना, बैठ करके एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, गले मिलना, इस प्रकार के जो कास्ट टैबूज थे, जो उस समय की जो जातिगत प्रथाएं थी, उसको वो तोड़ते थे, उसका विरोध करते थे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क और कमेंट ऑन द व्हाट्सएप नंबर। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड लक, बाय।